Now see, today we will discuss how to represent the pH scale. Okay, pH scale क्या होता है, इसको कैसे नोट किया जाता है, and what is the exact meaning of it. So pH, okay, it stands for P means power or potence, and H stands for H plus ions concentration. H plus ions concentration. Got the meaning of these two? What is P and what is H? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, ma'am. Huh. Now how to draw pH scale? So pH scale ranges from 0 to 14. pH scale का range क्या होता है? It ranges from 0 to 14. It is fixed. So what is the middle of 0 and 14? 7. 7. Very good. 7. Very good. Yes, very good. 7. Okay, 7 is the middle. अब इस pH scale को कैसे classify किया गया है? The pH below 7, the pH below 7 is considered as an acidic pH. इसको consider किया जाता है as an acidic pH. Why I have represented with a red color? Any guesses? Why I have written this word with a red color? Because acid change little red. It was paper red. Okay. Because most of the acids are red in color. Because most of the indicators shows red color when they mixes with acid. बहुत सारे ऐसे indicators हैं, हमने बहुत सारे indicators पढ़े हैं. When they mixes with the acid, mostly, okay, what they shows red color. While the pH greater than 7, the pH greater than 7, okay, is considered as a basic pH. It's considered as a basic solution. The solution who's having pH greater than 7 is considered as an acidic solution. And children, the solution with the exact pH 7, जिसका pH exactly 7 होता है, right? They are considered as a neutral substance. उसको क्या बोला जाता है कि वो कैसे substances है? They are neutral substance. Neutral substance. Yes, very good. मैम So pH below 7. हाँ, yes, सौरभ. मैम जो 7 के आगे रहते हैं उसकी भी एक मतलब ऐसे स्पेसिफिक किया होगी ना कि मतलब कौन से डिजिट तक रहते हैं. हाँ, हर एक सब्सटेंस का फिक्स पीएच होता है. Each substance has a fixed pH. Okay, and मैम तो वो पीएच की मतलब हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 14. 14 है. Highest value of Yes, the ma'am. pH is 14. हाँ. Okay, this is the lowest value of the pH 0, and this is the highest value of the pH. ये basic concept clear हुआ सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ. So below 7 pH having all the substances are considered as an acid. The substance who has the pH exactly 7 is considered as a neutral substance, and the substance who have the pH above 7 is considered as a basic. अब इसके पीछे exact mechanism क्या है? See, when we dissolve any acid into the water, it dissociates into H plus ions. We know this very well. Let us see with one example. Hydrochloric acid, when it dissolves in a water, it dissociates into, इसका dissociation करो, separate करो इसको, H plus aqueous. Cl minus. Very good.
प्लस Cl माइनस एक्वियस। फिर क्या होता है, ये जो H प्लस है ये वाटर के ऊपर जाके ऐड हो जाता है, तो क्या बनता है H प्लस, ये वाटर के ऊपर ऐड हो रहा है, H3O. वेरी गुड, इट Hydronium फॉर्म्स ion. H, वेरी गुड वेरी गुड, it H3O. forms H3O plus, very good, that is hydronium ion aqueous. So exactly this is the pH scale indicates the concentration of hydronium ion, मतलब ही H plus, H plus is equal to H3O plus, जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ही क्या बनेंगे, हाइड्रोनियम आयन बनेंगे। इट्स सिंपल, क्योंकि जितने H प्लस प्रोड्यूस होंगे वो सारे उतने वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन होंगे। एक H प्लस प्रोड्यूस हुआ तो एक वाटर के साथ कंबाइन होगा, सो वन हाइड्रोनियम आयन विल प्रोड्यूस। इफ टू हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस दैट कंबाइंस विथ टू डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल, then 2H3O plus will produce. Okay, so H plus is equal to H3O plus. So here we can say the pH scale is used to measure H plus ions, or we can say hydronium ion, that is H3O plus ions. Is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good, very good. Now children, strong acids, okay, strong acids dissociates completely and have more H plus ions. तो ये pH स्केल को और फर्दर क्लासिफाई कैसे किया गया है, इसके और टू पार्ट्स डिवाइड किए गए, ठीक है। दिस मच ऑफ पोर्शन इंडिकेट्स द pH वैल्यू 0, 1, 2, 3, okay, and this is the pH value for strong acids, strong acids. Then 3 के बाद नंबर्स आते हैं आपके 4, 5, 5, 6. 6. This is used for the weak acid. It means this is the pH of weak acids. Then the pH 7 is the pH of neutral solution. This is the pH of neutral solution. ये neutral का होगा, हाँ. Then 8, 9 and 10. This is the pH used for weak bases. Weak base थोड़ा सा pH इनका कम होता है, और एकदम जो strong bases होते हैं, strong bases, okay, उनके लिए pH है 11, 12, 13 and 14. So this is the pH value of strong bases. Strong bases. Okay. Now here I have shown you different colors. Starts from the red, then it fades to orange. Orange fades to yellow, but I have not written because it will not be actually visible here. Yellow. Okay. Then green. Then from green, I have shown it towards the blue color, and then blue. After the blue, the purple is shown. So these are only the color changes you can observe when you use universal indicator. जब भी हम universal indicator use करेंगे, so this is how you will observe the color changes with respect to different solutions. And what is universal indicator? Universal indicator is the mixture of various indicators. Various indicators. Universal indicator क्या है? Universal indicator is the mixture of various indicators. इसमें बहुत सारे indicators जब हम mix कर देते हैं तो बन जाता है universal indicator. And the surprising thing is what? Universal indicator shows 14 different colors
at 14 different pH. जब इस इंडिकेटर को आप एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड्स में डालोगे ना, लाइक HCl, H2SO4, HNO3, तो ये आपको रेडिश कलर दिखाएगा. जब आप इसको थोड़े से वीक सब्सटेंस में डालोगे, वीक एसिडिक, जैसे कि जो एडिबल एसिड्स होते हैं, सो यही इंडिकेटर आपको वहां पे ऑरेंज कलर देगा. When you add this indicator into a substance having a pH near about 6, 6.5, like lactic acids वगैरह जो होते हैं, so वहां पे आपको थोड़ा सा येलोइश कलर मिलेगा. When you will add this indicator to the distilled water, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, only the molecules of H2, distilled water, then it will show you the green color. ये आपको ग्रीन कलर दिखाएगा. इसके अलावा जो भी न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं जो हम खा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल NaCl है. NaCl फॉर्म्स न्यूट्रल सॉल्यूशन इन वाटर. और हमने 2-3 देखे हैं. ग्लूकोज, वी नो ग्लूकोज डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड इट फॉर्म्स न्यूट्रल सॉल्यूशन. तो ग्लूकोज सॉल्यूशन में भी वो ग्रीन कलर दिखाएगा. देन अल्कोहल, हमने ये भी देखा था कि अल्कोहल डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज अ न्यूट्रल. सो इन सारे में वो कलर क्या दिखाएगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर विल शो ग्रीन कलर हियर. देन वीक बेसिस, जैसे कि बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा का थोड़ा ज्यादा होता है, बट दूसरे भी है, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है. ओके, इनमें थोड़ा सा ब्लू दिखाएगा. और एकदम जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं लाइक NaOH, KOH, इन दोज दिस इंडिकेटर विल शो पर्पल कलर, right? So universal indicator shows different colors at different pH. So pH क्या होता है? pH is nothing but the hydrogen ion concentration, and that is measured in terms of numbers. What is the range of number? 0 to 14. 0 to 14 is the range of the pH scale. ये pH scale का range है. इसके ऊपर pH scale नहीं होता है. तो जो सबसे एसिडिक होगा ना, एकदम स्ट्रॉन्ग एसिडिक, उसका pH यहाँ आता है, नियर अबाउट. और जो एकदम स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, उसका pH यहाँ तक आता है. सो इज दिस क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Now I will show you one image where you will clearly come to know what are the different substances having different pH. So just wait. Is my screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now everyone look at this picture. See the first one, HCl, hydrochloric acid. Okay, it has a pH 0 to 1. 0 to 1 के बीच में इसका pH है. But which one is the 0? The one which is present in the laboratory. हमारे लैब में जो होता है in the bottle. Okay, it has a pH 0. It is very strong, very strong. और जो HCl के वेपर्स होते हैं, okay, मोस्टली इनका pH होता है 0. Then the HCl we have in our stomach, its pH is 1. Here only one examples are given. Then lemon juice, okay, which contain citric acid. Its pH is about 2. And look at the color differences. The color is faint here at the pH 2. It is little faint, and then again it is switching towards the yellow and green. So you can see the color changes. Then vinegar. The pH of vinegar is 3. Wine. pH of wine is 4. It means it is a weak acidic substance. visible. Yes? What? Will you please repeat? Children?
हाँ हाँ बोलो ना, बोलो बेटा। मैम आप जो दिखा रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, मैं आपको ये व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दूंगी। जस्ट लिसन, इज इट विजिबल टू अदर स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. It is visible. यस मैम। Okay. Then coffee. Okay. pH of the coffee is 5. It means it is also a mild acidic. Mild acidic. Then milk. pH of the milk is 6. And then water. pH of the water is 7. Then blood. एक्चुअल में ब्लड का क्या होता है 7.4 है। pH of the blood is 7.4. But here it is mentioned 8. Okay, so 7 to 8 के बीच में आपके ब्लड का pH होता है। Then baking soda. The pH of baking soda is 9. Okay, so it shows blue color when we add universal indicator to it. Then we have milk of magnesia. ये जो है ना red one. This is the milk of magnesia which can be used as an antacid. जब भी हमें हाइपर एसिडिटी होती है ना हमारे स्टमक में, सो उस टाइम पे आपको कुछ रेमेडी के लिए कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। जैसे कि आपने ऐड देखा होगा और टीवी पे ऐड आता है जेलोसिल और पता नहीं क्या क्या अलग अलग कंपनीज के अलग अलग टैबलेट सायरप्स होते हैं, है ना। वो आदमी समोसा खाता है फिर उसको कुछ तो भी होता है, फिर वो कुछ टैबलेट ले फिर कुछ सायरप्स लेता है, फिर 6 सेकंड में पता नहीं उसको क्या हो जाता है और समोसे खाने की इच्छा होती है। मैम सो वो द मिल्क, मैम इनो इनो हाँ राइट राइट, है ना, इनो की मैम ऐड वही है। मैम काम हम्म करिए 6 सेकंड। राइट राइट, काम करे 6 सेकंड में। सो what that work is doing, that milk of magnesia or any other antacid, it neutralizes the acidity of stomach. जब भी हमारे स्टमक में हाइपर एसिडिटी हो जाती है तो ऐसे सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं कि जो बेसिक है और हमारे बॉडी को हार्म कॉज नहीं करेंगे। जैसे कि अभी एक बच्चे ने बताया इनो, तो इनो में क्या है, इनो में ये है बेकिंग सोडा है, ठीक है। या तो फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया टैबलेट के फॉर्म में या तो फिर सायरप के फॉर्म में हमें प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। जैसे कि जेलोसिल, जेलोसिल के सायरप्स भी आते हैं और टैबलेट्स भी आते हैं, तो उसमें ऐसे माइल्ड बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं दैट वी कैन इनटेक इजीली एंड इट न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ द स्टमक। तो धीरे धीरे क्या करेगा, ये बेसिक है और स्टमक में एसिडिक सब्सटेंस है, तो ये बेस क्या करेगा, एसिड की एसिडिटी कम करेगा, और ये उसकी अल्कलाइनिटी कम करेगा, तो धीरे धीरे वो नॉर्मल पीएच में उसको लाएगा, है ना, क्योंकि वहां पे न्यूट्रल सॉल्ट्स बनेंगे और वी विल गेट द रिलीफ फ्रॉम द हाइपर एसिडिटी। ये उसका Ma'am, इंपॉर्टेंस है। हाँ यस बेटा। also it will produce less heat, na? हीट मतलब कहाँ पर हीट बेटा, इन द स्टमक? Yeah, नो नो नो, अवर because बॉडी टेम्परेचर, no beta, actually see listen, our body temperature remain constant, so wherever in the stomach, even if the hyper acid is secreted, our body temperature does not changes. Is this point clear beta? okay, ma'am. हाँ, so there is no role of temperature and the milk of magnesia here, nothing, there is no relation in between these two, okay. हाँ, then Ma'am, pH scale. Ma'am, pH हाँ बोलो scale से भी मतलब क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्या एग्जाम में? हाँ, पीए स्केल पे ऐसे ही क्वेश्चंस आगे मैं बताऊंगी आपको इसके बारे में, और थोड़े 2-3 कॉन्सेप्ट्स है हमें डिटेल में कि एज पीएच चेंजेस, सो हाउ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस, व्हाट इज रिलेशनशिप इन बिटवीन पीएच एंड H प्लस। तो इस टाइप के क्वेश्चन से हम आगे पढ़ने वाले हैं ये कॉन्सेप्ट। पहले आप पीए स्केल समझ लो, है ना, और उसके एग्जाम्पल्स Yes, हम देख ma'am. लेते हैं। देन सोप्स, कौन से सोप्स, हमारे बॉडी वॉश के जो सोप्स होते हैं, राइट,
या फिर डिटर्जेंट्स वाले जो सोप्स होते हैं लाइक यूटेंसिल्स वॉश वाले वगैरह, सो उनका पीएच नियर अबाउट 12 होता है, राइट। देन ब्लीचेस होते हैं। अभी ब्लीचेस बहुत सारे टाइप के हैं, अमोनिया ब्लीच है, या तो फिर कोई कैल्शियम ऑक्साइड कंटेनिंग ब्लीचेस होते हैं, स्किन ब्लीच करने वाले, हेयर ब्लीचिंग होते हैं, या तो फिर टाइल ब्लीच करने वाले होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस ब्लीचेस, ओके, उनका जो पीएच होता है दैट इज अबाउट 13, मतलब बेसिक के तरफ है। और फिर ड्रेनेज क्लीन करने के लिए भी कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे कि NaOH। डायरेक्टली आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ दैट, NaOH। NaOH हो गया, KOH हो गया, यू नो दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। ये मिस पता है? हाँ, हाँ, बोलो। मिस मुझे डाउट है। लेट मी एक्सप्लेन दिस लास्ट वन, ओके। ओके मैम। हाँ, सो जैसे कि पेपर इंडस्ट्री है, तो पेपर इंडस्ट्री में क्या होता है? पेपर इंडस्ट्री में जो प्लांट का जो वुड होता है उसको प्यूरिफाई किया जाता है। तो उस पेपर में जो भी अनवांटेड सब्सटेंसेस है, ये सारे इन स्ट्रॉन्ग बेसिस के यूज से निकाले जाते हैं और पेपर वहां पे प्यूरिफाई किया जाता है। प्रोसेसिंग कहते हैं, पेपर की प्रोसेसिंग करते हैं। सो फॉर दैट दिस केमिकल्स आर यूज। उसके अलावा पल्प इंडस्ट्री होती है, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री। कोई कोई इंडस्ट्रीज में पता है एनिमल की स्किन यूज करते हैं, है ना, फॉर मेकिंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। तो एनिमल की जो स्किन होती है उसको भी ये NaOH KOH की हेल्प से क्लीन किया जाता है। सो ये एक स्ट्रॉन्ग बेसिस है। इवन डीग्रीजिंग ऑफ द मेटल के लिए भी यूज होता है। डीग्रीजिंग मतलब क्या, समझो ये पाइप है मेटल का जो किसी मशीन में यूज हो रहा है, और जिस मशीन में इस पाइप के ऊपर ऑयल का लेयर चढ़ाया गया है फॉर इजी ल्यूब्रिकेशन, है ना, ऑयलिंग करते हैं मशीन्स को। तो समझो ये ऑयल के ऊपर बहुत सारा डस्ट भी जमा हो गया, क्योंकि ऑयल के साथ है ना मोस्टली डस्ट जमा हो जाती है। तो अगर हमें ये डस्ट निकालनी है अलोंग विथ ऑयल, तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड क्लीन दैट पर्टिकुलर मेटल विथ NaOH, दैट इज कॉल्ड डीग्रीजिंग। ग्रीज मतलब क्या? ऑयल। तो डीग्रीजिंग के लिए भी NaOH यूज करते हैं, उसका पीएच होता है 14। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस मैम। Yes, ma'am. Yes. हाँ, अब बोलो बेटा। नाउ व्हाट डाउट यू हैव, टेल मी। मिस बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं कि सैलिसिलिक एसिड यूज किया करो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया करो फेस पे एज अ सीरम टाइप। तो मिस उसका भी पीएच हाई लेवल पे होता है, तो वो अपनी बॉडी मतलब अपनी बॉडी पे से सबसे ज्यादा मतलब अपनी स्किन सबसे वो रहती है। तो वो कैसे मतलब कैसे झेलती होगी वो इतने पीएच को, इतने कम पीएच को, ज्यादा पीएच हाँ, को और अब कम पीएच को? देखो, अब सबसे पहले पता है मेन चीज क्या है, कि हमारे स्किन का जो पीएच है वो एसिडिक है। हमारे स्किन का जो पीएच है दैट इज एसिडिक। ये बात सबसे पहले आप समझ। ओके, हमारे स्किन का पीएच 7 नहीं है। पीएच ऑफ अवर स्किन इज एसिडिक। इसलिए जो कॉस्मेटिक्स होते हैं ना, वो कॉस्मेटिक्स कैसे होते हैं? आइदर वो न्यूट्रल होते हैं या फिर माइल्ड एसिडिक होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी स्किन को हार्म नहीं होता है। एंड यू नो व्हाई द पीएच ऑफ आवर स्किन इज स्लाइटली एसिडिक? बिकॉज the bacteria should not remain on it and they should not cause a skin diseases. जैसे कि हमारी स्किन ये बाहर आउटर सरफेस जो है स्किन का, दैट इज फॉर each and every second it is exposing to the atmosphere where uncountable microorganisms are present. So there may be a chance that our skin can expose to the disease causing microbes that can penetrate through our skin. But it never happens. It happens rarely whenever we have any wound or any cut or any infection at that time. Okay, that time only microbes can enter. Otherwise not. So why this is so? Because our skin pH is acidic and outside bacteria cannot sustain in those acidic environment. So that is the reason all the time we are not getting a skin infection. Clear? यस मैम। और मिस एक और था कि एसपीएच और पीएच में क्या फर्क है, क्योंकि मोस्टली सनस्क्रीन्स में एसपीएच लिखा रहता है +15, -15, +30, +75। क्या 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 लिखा रहता है?
मिस बहुत सारे सनस्क्रीन जो रहते हैं ना, जो मतलब धूप से बचाते हैं अपनी स्किन को, तो हम्म, उस पे SPH लिखा रहता है, +15, -15, +75, और मतलब वो उसमें क्या फर्क रहता है SPH और PH में, और ये क्यों लिखा रहता है +15 -15? HPH क्या ये सही लिखा है क्या मैंने? HPH नहीं नहीं, S फॉर SPH, S फॉर सन, SPH PH, हाँ ये नहीं नहीं नहीं। और PH में फर्क रहता है। ओके ओके, तो वो जो पीएच लिखा है वो इस तरीके से लिखा हुआ है जैसे मैंने अभी नोट किया है? हाँ मिस। Okay, okay. Then I have to check that why it is written 15 and all that, because its range is 14 only maximum. Then what that S is actually, I have to look for that. नहीं I have मिस, not seen. जो sunscreen, मैम जो मैं मैम खुद वैसे यूज नहीं करता लिखा हूँ होता वो। 15 होती है। One by मैं one, one जो by खुद one. यूज करता हूँ, मैं जो खुद यूज Hmm. करता हूँ सनस्क्रीन, वो +15 है, Hmm. और जो मेरी दीदी यूज करती है वो +75 है। अच्छा, अच्छा, अच्छा. One girl was speaking something. Yes, कौन बात कर रहा था? कोई तो भी बात कर रहा था कौशल के साथ में. मैम तब बोल पीएच सकते. वैसे हाँ, नहीं लिखा होता पर वापस बोलो. वो पीएच वैसे नहीं लिखा होता। Yes, Okay, okay. हाँ. See, Kaushal, I will check what is that actually, and I will let you know. Okay, Kaushal. ओके मिस, नो प्रॉब्लम। हाँ. Now see, this is one of the example where the various samples are given with the various pH, and you can see universal indicator shows such a beautiful color changes with respect to the various samples. Here I have one more scale. Now see another example. Some different examples are given here. A little difference is there, like यहाँ पे टोमेटो का दिया हुआ है, कॉफी सेम है, स्टमक टैबलेट का दिया हुआ है, दैट इज एंटासिड्स का दिया हुआ है, अमोनिया सॉल्यूशन, रेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स आर सेम. बैटरी का एसिड दिया हुआ है HCl. Okay, that its pH is 0. This is one more scale that indicates the various pH of various solution. अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? What is exactly the relationship between the pH value and the H plus ion concentration? अब देखो, हम क्या बोलते हैं कि स्टार्टिंग के जो है मीन्स बिलो 7 जो है वो कैसे एसिडिक है. ठीक है, एसिडिक है. और अबव 7 जो है वो है बेसिक. ठीक है, और बीच वाले कैसे हैं? yes, न्यूट्रल. ma'am. हाँ, बीच वाले कैसे हैं? न्यूट्रल. इसका क्या मतलब है कि एज द pH increases, listen my sentences carefully, as the pH increases, the nature of the solution changes from acidic to basic. जैसे जैसे pH की वैल्यू बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे सैंपल का जो नेचर है वो एसिडिक से बेसिक में टर्न हो रहा है. तो ये टेबल अभी देखिए, ये वाला पर्टिकुलर इमेज देखिए, ये क्या बताता है कि एज वी मूव फ्रॉम 0 to 14, as we move from 0 to 14, the concentration of the H plus decreases. Of course, सिंपल सी बात है कि यहाँ के तो एसिड है और यहाँ के बेसिस है, और हमें पता है कि एसिड्स में H प्लस होते हैं, बल्कि बेसिस में OH होते हैं. दिस नो वेरी वेल. तो H प्लस अगर कम होते जाएंगे तो OH बढ़ते जाएंगे. H प्लस जैसे जैसे कम होते जाएंगे वैसे वैसे OH बढ़ते जाएंगे, क्योंकि सैंपल अपनी एसिडिटी कम कर रहा है और अल्कलाइनिटी बढ़ा रहा है. As the pH changes from 0 to 14, the acidity of the solution decreases and alkalinity, that is basic nature of the solution, increases. So it's very simple to understand that as the acidic nature is decreasing, means concentration of H plus is also decreasing. तो ये जो ब्लू वाला एरिया है, ये ब्लू वाला एरिया हमें क्या बताता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस.
और जो व्हाइट वाला एरिया है वो हमें क्या बताता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH। तो आप एरिया देखो, यहाँ पे बहुत ज्यादा एरिया है, फिर वो कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है ना, और कम हो रहा है, और कम हो रहा है, और एंड में एकदम कम हो गया। मीन्स pH 0 to 14 जब मूव होगा तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाएंगे। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिक्रीजेस एज द pH वैल्यू इंक्रीजेस। और OH का एग्जैक्टली उसके उल्टा है ना। OH का देखो, एज pH इंक्रीजेस 0 to 14 मतलब क्या, इंक्रीज इन द pH। pH जब इंक्रीज होता है देन OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, क्योंकि पहले एसिडिक है और एसिडिक से भी बेसिक बनता जा रहा है सब्सटेंस, स्ट्रॉन्ग से वीक एसिड से न्यूट्रल, न्यूट्रल से फिर वीक बेसिस, और वीक बेसिस से एंड में स्ट्रॉन्ग बेसिस। सो स्ट्रॉन्ग बेसिस में क्या ज्यादा होना चाहिए, OH ज्यादा होना चाहिए, H प्लस कम होना चाहिए, है ना। सो दिस इज हाउ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन चेंजेस with respect to pH. Is this clear, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this particular diagrams explain us the concentration of H plus and OH minus ion with respect to pH. अब आप मुझे ऐसा पॉइंट बताइए इस डायग्राम में where you can see the concentration of H plus and OH is equal. Neutral. 7 pH. That's Neutral. neutral. 7 neutral. Very good, very good. pH 7. ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल पे देखिए, द एरिया विच इज मार्क्ड विद अ ब्लू एंड द एरिया विच इज मार्क्ड विद अ व्हाइट, दोनों का सेम है ना। ये देखो, इतना एरिया और इतना एरिया। सो द सब्सटेंसेस विच आर न्यूट्रल हैविंग अ pH 7 contain equal amount of H plus and OH minus, contain equal amount of H plus and OH minus ion. Now let me give you few examples of this. इसके थोड़े से हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। Okay. Now all of you pay your attention here. I'm giving you few example of the solution who are having equal concentration of H plus and OH. अब देखो, जैसे कि ये वाटर है H2O, ओके, H2O वाटर, इसको हम स्प्लिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ H प्लस एंड OH। तो यहाँ पे एक H है, ये H प्लस के फॉर्म में निकल गया, बचा क्या, OH, बचा क्या, OH माइनस। तो देखो H2 H2, O सिंगल O सिंगल। सो वाटर का डिसोसिएशन कैसे होगा, H प्लस एंड OH। टेल मी द नंबर ऑफ H प्लस, कितने H प्लस है, 1. और कितने, हाँ, कितने OH है, 1. 1. इज इट इक्वल, इज इट इक्वल। Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये हो गया, yes, तो ये हो गया न्यूट्रल। ओके, अब सेकेंड चीज देखो, NaCl, व्हेन NaCl गेट डिसॉल्व्स इन वाटर, देखो क्या क्या होगा। पहले NaCl को स्प्लिट करते हैं, Na प्लस प्लस Cl माइनस, Cl minus. वेरी गुड। नाउ डिसोसिएट वाटर, अब हमने वाटर को डिसोसिएट किया। सो NaCl के सॉल्यूशन में भी क्या है, H प्लस 1 इज इक्वल टू OH1। तो यहाँ पे भी H प्लस और OH जो है इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में। अब एसिडिक में H प्लस ज्यादा क्यों होते हैं, हम ये देखेंगे, तो आपको ये और क्लियर होगा कि why H प्लस आयंस आर मोर इन एन एसिडिक सॉल्यूशन। अब देखो HCl, HCl व्हेन डिसॉल्व्स इन वाटर, चलो दोनों का डिसोसिएशन करो फटाफट, डिसोसिएट इट, कम ऑन फास्ट, डिसोसिएट करो, HCl को डिसोसिएट करो फटाफट। H3O. पहले सेपरेट करो, आयन सेपरेट, Cl Plus Cl minus. H प्लस प्लस Cl माइनस, और अभी वाटर को डिसोसिएट करो, H प्लस
H plus OH minus. OH. Now tell me, how many H plus are there total? 2 H plus. 2. 2 H plus. And OH कितने हैं? 1. 1. हाँ, so what is in the greater amount? Acidic solution में क्या ज्यादा होते हैं? H plus. H plus. Yes. H plus. हाँ, so acidic solution contain more H plus. अभी OH का एग्जाम्पल देखते हैं. मतलब bases. When the bases like NaOH get dissolved in water. Dissociate करो, separate करो इनको. Na plus plus OH Na minus. plus माइनस. OH minus. minus. वेरी गुड. अब वाटर को डिसोसिएट करो. H plus plus OH minus. OH minus. Minus. वेरी गुड. अभी हम रेशियो नोट करेंगे. टेल मी हाउ मेनी H plus आर देयर? 1. 1 H plus and 2 One. OH minus. एंड 2OH. तो बेसिक सॉल्यूशन में क्या ज्यादा होता है? OH minus. Minus. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. इसलिए वेरी गुड. Yes, इसलिए हम क्या, हाँ, दैट्स व्हाई व्हाट वी से व्हेन द pH increases 0 to 14, ओके, H plus आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस. H plus कम हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके OH बढ़ रहे हैं. तो बेसिक्स में, बेसिक सॉल्यूशन में OH ग्रेटर होते हैं और एसिडिक में H plus ग्रेटर होते हैं. So these are the two examples by which you can understand why acids have more H plus and why bases have more OH minus. Understood, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, very good. So overall, हमारा moral क्या होगा इस topic का? What is the conclusion of this topic? The conclusion from this topic is H plus ion concentration decreases as pH increases. pH value जब increase होगी 0 to 14, H plus के concentration कम होंगे. Exactly reverse for OH. As pH value increases, the OH minus ion concentration increases. OH बढ़ रहा है और H plus कम हो रहा है. These two statements you have to remember. After that, you have to remember the classification. ये कि कहाँ से कहाँ के बीच में के जो सैंपल्स होते हैं उनका जो pH होता है that will be considered as a strong acid. Okay, so 0 to 3 आप पकड़ लो strong acid है, 4 to 6 वाले weak acid है, 7 pH having substance is a neutral, then 8 to 10 weak bases and ये 14 तक के आगे के strong bases. This second thing you have to remember forever. Clear beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, very good.